Hey, hi, how are you? The mic lover is here. So, very good evening, everyone. Here we are again, jumping into the weekend. Hi, Neha. Welcome. So, today we have a very interesting session. The title is Entrepreneurs in Corporate. So, let's have some more people joining in, and I'm going to invite the guest for today. So, welcome, Neha. So, very warm welcome to all those who are joining us right now. So, let me just quickly put the comment and pin it. Hello, Paithani manufacturer. I would like to know your name, please. And please keep your questions ready. Hi, Nida. Welcome. Hi, Gopi. All my wonderful friends joining in. So good to see you, all of you. Yes, Nida. Let those hearts keep popping up. Prachi, hi. So good to see you. Yes, so let me invite our guest for today. What plans for the weekend? Please tell me. So even I can make some plans, some inspiration from you guys. Hi, Rupesh. Welcome, welcome. So good to see you joining almost all of these wonderful sessions that we host on every Saturday, trying to add a lot of value. Good evening. Yes, that's the spirit. So I've already sent the request to our guest for the evening, Mr. Indrabhuvan Kumar Singh. He should join us shortly. Shreyas. Hi Shreyas, welcome. Amit ji, namaste. कैसे हैं आप? Dream Chaser. Oh, can I know your name, please? You've been chasing dreams, that's all I can understand, but it'll be great if you can tell me your name so I can address you with your name. Hi, Kanpur Model 123, welcome. Let the hearts keep popping, and we are just waiting for our guest to join in. Thank you, Amit ji. So sweet of you. Thank you. Just waiting for the events to start in full swing and that we can also meet up in the events. Shreyas, I'm wonderful. Thank you so much. A very good evening to you. I hope you're doing fantastic and all set for the weekend. Guys, tell me, what are your weekend plans? Come on, let's have some chat till the time we are joined by our guest today evening. Singer Amy, hello. So, yes, Inder sir is yet to join. I'm waiting for him.
Yes, Inderji is here. Welcome, Inderji. Could you please accept my invite that I've sent you? Okay, I'm sending it again. Can you hear me? Yes, hi, good Good evening. evening. Good How evening. are you? I am fine. How are you? So, guys, wonderful. Here I am from Nasik, India, and we have Indra Bhuvan Kumar Singh ji joining all the way from Tanzania. So, how's Tanzania today? Tanzania is doing good. So you all are doing Oh, fantastic. wonderful. Yeah, yeah. Yes, How is India? absolutely. India is rocking as always. I hope the numbers are not increasing much. We are just trying to hold up the ground right now against COVID. Yeah, yeah. God So grace. yes, Yes, सब yes. लोग mask पहनो, social distancing रखो, which is very important. True, 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 true. Yes. So Definitely. see, we have wonderful people joining in today. People, so here, let's start right away without any further ado. And please keep your questions ready because we have an expert right here to answer all of your queries, doubts, questions. So before we start, let me introduce to this wonderful gentleman, a very kind-hearted soul, a very humble gentleman, even after reaching the pinnacle of success. The best quality that I found in him is the humility that he has and the kindness that he has. So once again, a hearty welcome to you, Indra Bhuvan ji. Thank you so much, ma'am. Thank you Well, so I'm much. a stage, लेकिन आज Insta Live is the stage, so I'm going to talk, talk and talk. Yeah, yeah. Okay, so let me quickly introduce all of you to Indra Bhuvan Singh sir. He is Mr. Indra Bhuvan Kumar Singh, CEO of Maisha Tanzania Limited. He has done his MBA in agribusiness from IIBM Rajasthan, Agricultural University, Bikaner, India. He is the CEO, business head, a mentor, a coach, an entrepreneur trainer, and also an international writer. So he's an author too. He's a business head with an entrepreneurial drive, holding over 16 years of experience, 5 years in India and 11 years internationally, of qualitative and quantitative success in leading businesses in cross-functional environment to setting up overall business operations and achieving growth objectives. He has an amazing and extensive experience as a motivational speaker, workshop leader, mentor, and entrepreneur trainer for both national as well as international market. So, ladies and gentlemen, please put your hands together as I welcome Mr. Indra Bhuvan Kumar Singh. Thank you so much. Yes, and he has recently launched his book, so all of you can just go to Kindle and search out. The title of the book is The New Ways of Self Transformation. It is there on Amazon Kindle, so do not miss out. Wonderful. So, well, today's topic, इंद्र भुवन जी, आप पहले क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं सवालों की जड़ी शुरू करने वाली हूँ. So, anything, any opening lines you would like to say? Yeah, yeah. First of all, Silpa ji, thank you so much for inviting me on this platform. And so nice of you for your kind words, which you stated for me. That's your humbleness, okay? And even I can tell one thing, even in my whole friend circle, even I met many people and many event planner. You are one of the humble lady, I can say, and very very down to earth, very polite, and we can say that we have a wavelength matching, we have frequency matching. Absolutely, So so absolutely. so thank you so much for inviting me, and and I would like to pay my this big respect to my family and to God where I am sitting today, because without their support this journey was not possible, and whatever people are achieving in their life without their family support, it's almost impossible. So all credit goes to Absolutely. my family, parents, God, my wife. So I am very, very blessed, I can say, and very, very, lucky. I have got very good combination of family and friends. So all credit goes to them. And once again, thank you so much. And let's start today. And Absolutely. if I can delight with my experience, with my knowledge to my audience, I feel very privileged.
I'm sure this session is going to be amazingly insightful, especially for the youth, for people who want to dive into the corporate industry or who are existing entrepreneurs, but then at the same time, they also want to be there in the corporate industry. So yes, it is going to be an insightful session. We have some great questions coming up. And in the meanwhile, I would request all our viewers to be ready with your questions in case if you are an existing entrepreneur, or then you are thinking of a startup, or then you're stuck somewhere, you have some queries, or you have some queries about the corporate industry, some about the code of conduct, anything that you feel, because Indra Bhuvanji has amazing and extensive experience in this field, not only in India, but he's leading Maisha in Tanzania. So yes, amazing achievements that he has. So let's begin. The very first question that I would like to ask you is, what is the role of leadership in corporate? Because if I think leadership is required everywhere, but then what is that paradigm that you would like to explain when it comes to having those leadership qualities in corporate industry? Yeah, that's very fantastic question, Silpaji. Uh, According to me, leadership, it's not like that it's required only in corporate sector. Leadership is the quality it's required everywhere in all domain of life, whether it's your personal life or social life or corporate life or professional life. Anywhere this quality required, because without proper leadership, you cannot go into right direction. Mm-hmm. Even let me give you some insight in the past. Like when you start with our family, in family also we have somebody leadership, our parents, our mother Yes. and father. So they are working like a guiding star, जो हमको रास्ता दिखाते हैं. Under the Bilkul. under the leadership of our parents, we are moving towards the life. So in same way, even in corporates also, we need strong leadership. What do you mean by leadership? आज के डेट में क्या होता है कि जो स्पेशली स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, जो हमारे आज के जनरेशन है, इन बिटवीन 20 to 30 35 years old guy, they are very very versatile. उनको Yes. they are very versatile, very vulnerable, and उनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए. They don't have patience. They want to achieve everything Yes. in one night. Like it's like a miracle. Miracle cannot happen in one night. Even even Rome is not built in one day. Yes. Yes. So Absolutely. so so what I want to tell here, leadership is highly required in any profession, and anybody can be leader. इसकी कोई प्रीरिक्विसाइट नहीं होती शिल्पा जी कि ये क्राइटेरिया Hmm. होना चाहिए. It's a sometime you can say inherent quality or inbuilt Hmm. quality, and later on it's affected by external factors. अगर आप देखेंगे कि जो लीडर है वो इनबॉर्न लीडर नहीं हुआ था, वो यहाँ पर Bilkul. आया, अपने आप को परफॉर्म किया, लोगों से सीखा, उसको अडॉप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया. Correct. In a very short term, what is leadership? In my opinion, turning vision into reality. That is leadership. Right. Perfectly said. अगर आप जो एक जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, आई एम सीईओ. We have Hmm. a board meeting in AC office. Okay. Whenever we are talking in corporate room, whatever we are talking in corporate room with the numbers, if that number is going to achieve on ground, and if you are succeed, then you are a successful leader. Correct. अगर आपने अपने ड्रीम विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया तो आप एक सक्सेसफुल लीडर हो. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ. Hmm. वो चाहे टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे मार्केटिंग प्रोफेशन हो, चाहे एजुकेशनल प्रोफेशन हो, कहीं पर भी ये लागू होता है ये फॉर्मूला. तो एक भाई Bilkul. लेमन टर्म्स में कि आपकी लीडरशिप ही आपकी काबिलियत है. आप जो सोचते हो आपकी लीडरशिप है.
राइट। तो कॉर्पोरेट के लिए आपको लगता है कि कोई जैसे लीडरशिप क्वालिटीज हैं, पैरामीटर्स है, ऐसी कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज आप यहाँ पर डिनोट करना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है, और इफ समवन वांट्स टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ, make their create their own image as a successful entrepreneur or a successful person in the corporate industry, which are those 3 top qualities you would say कि होनी चाहिए उस बंदे में? If you ask me, as per my perspective, the 3 qualities which are required for this leadership. Number 1, I would like to state, think out of box. ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ फ्रेज नहीं है, आपको इसको जीना पड़ेगा, which I can execute in my professional life also and personal life also. And आपको गो गेटर पर्सनालिटी होना होगा। बिंदास, बिंदास मतलब करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। डोंट बी इन डायलेमा। कभी भी आप शंका में ना रहें, डाउट में ना रहें। योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। If you read physics in our childhood science, yes, there is one concept of plane polarized light. Plane polarized light means focus. अगर आप देखेंगे कि बचपन में जब मैं अपनी चाइल्डहुड की बात करता हूँ, आज आपको ये सब सारे जो CFL बल्ब्स आ गए, LED बल्ब्स आ गया। बचपन में एक ऐसा बल्ब लगा होता था, उसके चारों तरफ कॉर्नर होते थे, बीच में उसका बल्ब होता था। तो दैट कंसेप्ट इज बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट। वो फोकस सिर्फ वहीं पर जाएगा। जो बच्चे भी पढ़ते हैं, उसकी फोकस भी जो जिसको बोलते हैं ना टेबल जो होते हैं लाइट्स, उसका भी फोकस सिर्फ बच्चे पे होता है जहां वो पढ़ रहा है। तो आपको बहुत ही फोकस बनना पड़ेगा। यू शुड बी फोकस, और आपका फोकस डिविएट नहीं करना चाहिए। अगर फोकस में डेविएशन हुआ तो आप अपने टारगेट, अपने अचीवमेंट को या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और क्या है, एक है कि आपको ब्लंट होना पड़ेगा, जो मैं बिलीव करता हूं। ब्लंट का मतलब है, इन माय डेफिनेशन, कि यू शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट। समटाइम दिस क्वालिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो। क्या होता है प्रोफेशनल में कि आपको कॉर्पोरेट में थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। सो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंसिंग बिटवीन डिप्लोमेसी एंड ब्लंट। अगर इसका कोऑर्डिनेशन आपको आ गया ना, तो यू आर ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर इसका आपने बैलेंसिंग करना सीख लिया जीवन में ना, तो आपसे बड़ा गेम चेंजर कोई नहीं है। And my boss is a very fantastic personality, Honorable Muhammad Aib, and he's a man of vision. And I'm learning too many things from him. He's a very I can say refined quality personality. और इतनी अच्छी बैलेंसिंग है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो काफी चीजें मैं सीखता हूँ उनसे। तो मैं समझता हूँ कि आज की जनरेशन को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो कॉर्पोरेट्स है, अगर इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो वो कहीं भी कामयाब होंगे। Nobody can stop them. True. Nobody can stop them. That's my opinion. Right. That's really wonderful. I think yes, जैसे आपने correctly mention किया, that leadership is something that is required every single day if you want to scale up and boost up your entire game, be it personal or professional. Leadership quality होना बहुत ही जरूरी है, and I think it can be developed. You do have few qualities which are inherent, लेकिन इसमें leadership quality आप अच्छे mentors के साथ, अच्छे coaches के साथ, if you read well, if you are a good listener, if you observe well, तो I think ये qualities inherit करना is not a big deal. You can do it, and which is going to really take you to places. I'm sure about that. आपने एक बहुत ही interesting बात कही इंद्रभुवन जी, that is diplomacy and being blunt. Okay. So how do we decide कि कहाँ पर डिप्लोमेटिक होना है और कहाँ पर ब्लंट होना है? Because एक फ्रेज मैं हमेशा सुनती आई हूँ, lot of people, when I counsel people, lot of people ask कि मैं मना नहीं कर सकता हूँ। I have this big issue, लोगों में assertiveness नहीं होता है कि मना कैसे किया जाए।
तो सबको हाँ बोल देते हैं एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो लर्न टू से नो वाला फंडा है, तो ये डिप्लोमेसी हो गया इन अ डिप्लोमेटिक वे, हाउ यू कैन डिनाई समवन। एट टाइम्स आपने बोला ब्लंट होना पड़ता है बिकॉज that might also hamper the relationship with the other person. True. So how to decide when should we be blunt and when can we handle the situation diplomatically? I think so. In diplomacy and being blunt, there is a very thin line. Okay, it's a very thin line. दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं. And what I feel, the perspective of propaganda, it varies from condition to condition and time to time, and it's all about the situational. If you might heard, leadership is of various types. There is one type is called situational leadership. Situational leadership ये भी कॉर्पोरेट में काफी काम आता है. ऐसे ये बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, बट मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लाइफ में. एंड सिचुएशनल लीडरशिप आपको वो कला है, वो आर्ट है जो आपको मदद करता है इन दोनों को अच्छे से इस्तेमाल करने में. अब क्या है कि कभी क्या होता है, जो लीडर है, जैसे मैं एक लीडर हूँ या मैं एक सीईओ हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी टीम को क्या बोलना है और कब बोलना है, उसका एक टाइम है. डिप्लोमेसी वहां तक ठीक है जहां तक आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, जहां तक कंपनी का हार्म नहीं हो रहा है. बट जब आपको ये लग जाए कि अब कंपनी का हार्म हो सकता है और इट कैन गो नेगेटिव, देन टाइम फॉर डिप्लोमेसी इज ओवर. Time for diplomacy is over. Then you need to be blunt. Blunt means time for action. Either say yes, either say no. Yes or no. Right. तो ये आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ये मेरी जर्नी है, ये मैं डाउन द लाइन सीखा हूँ. ठीक है. और वेरी ट्रू. और नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं भी फेस करता हूँ. समटाइम मुझे भी लोग कंपनी बोलते हैं कि यार यू आर वेरी ब्लंट पर्सन. इट्स ओके, आई डोंट फील बैड, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपके फील करने से मैं ब्लंट हो जाता हूँ और मेरी कंपनी का भला होता है तो फाइन, वेलकम, आई डोंट हैव एनी इशू. ट्रू, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें. इफ समबडी इज टेलिंग मी यू आर वेरी डिप्लोमेटिक गाय, फाइन, I don't have any issue. उसमें क्या, because it's a perception. One thing which I believe personally, I don't care for others what they're thinking for me, even in my personal life and professional life also. दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, I don't care. Bullshit. Damn care. मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ. Right. अगर ये आपने क्वालिटी डेवलप कर लिया अपने अंदर ना, then you are the one of the happiest person in the world. I'm sure. पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं, आई थिंक सो, नीदरलैंड इज द मोस्ट हैप्पीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वहां की जो 5 मिलियन पॉपुलेशन है उस देश का, वहां की जो पॉपुलेशन है सबकी मेंटालिटी सेम ही है, मोर और लेस. अच्छा. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचता है, मेरा बगल वाला क्या सोचता है मेरे बारे में. They don't care. Right. You should not listen, or you should not listen to those people. They do not contribute to your growth. Don't do derail. आपको उन लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. तो सिंपल सी बात है, जहां पे डिप्लोमेसी से काम चलता है वहां डिप्लोमेसी से चलेगा. अगर लगता है कि डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा तो you should take a blunt action. This is it depends on time to time and condition to condition. But you should know this quality. If you want to run the corporate, if you want to run the business, then you must have the good combination of these two qualities. Absolutely. I think that is really profound, as you said. और हमारे समाज में स्पेशली इन इंडिया ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो
So half of the dreams, I think, people are not able to achieve because log kya kahenge. That is the biggest thing. Be it your personal goals, be it your professional goals, log kya kahenge. So I think this is a really profound line. Ki if you feel it's right, if you feel it is in the good faith for you and your company or for whoever you are working, then I think you should not look back and just take the call. Yes. So diplomacy ho ya blunt, absolutely. So that is really profound. Another thing, I think, Inderji, when it comes to corporates, आजकल हम सभी सुनते हैं, this is a little controversial topic, लेकिन this is the fact, and I don't think कि being vocal about it should be any problem for me or for you. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, इसके ऊपर काफी सारी फिल्में भी बनी हैं, हम सबने देखी है. कॉर्पोरेट नाम की फिल्म थी कि किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है. कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी को काम से निकाल दिया जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो now not every person has that strength or not every person is strong enough to handle those things. तो जब ये इस तरीके की जब पॉलिटिक्स होती है या इस तरीके का जो प्रेशर होता है, how to handle this, how to make sure that these circumstances आपके ऊपर हावी ना हो जाए, how to make sure कि इसमें से भी आप रास्ता निकाल के you just keep going and keep holding your position strong, be rooted. तो ये एंटायर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और प्रेशर को हैंडल कैसे करना चाहिए इन लेमन्स लैंग्वेज दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. या नहीं, बिल्कुल आपने सही पूछा है. ये जो सवाल है बिल्कुल वैलिड सवाल है. और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, और ये काफी दिनों से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा. ये इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. ठीक है. Absolute. और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये इंडिविजुअल क्वालिटी होती है. ठीक है, कि आपको किस दिशा में जाना है. ठीक है. अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं लीडर हूँ. तो एक लीडर का काम सिर्फ ये नहीं कि फॉलोअर को बनाना ना. एक लीडर का काम ये है कि हाउ ही कैन रेप्लिकेट हिमसेल्फ इनटू मल्टीपल फॉर्म्स. मैं इंदर हूं, तो मैं क्या देखता हूं अपनी टीम में, मैं चाहता हूं कि सभी इंदर बने. वेरी ट्रू. मैं चाहता हूं ये, और इस क्वालिटी को रेप्लिकेट करें, उसको एक्सक्यूट करें, उसको जिए. ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ये एक तरह का कोप अप मैकेनिज्म है. ये एक तरह का कोप अप मैकेनिज्म है. जब आप अपने जैसे क्लोन बनाते हैं, क्लोन इज ए इंडिविजुअल पेरेंट फ्रॉम सिंगल पेरेंट. जब आपके जैसे आपके जैसे बंदे बनते हैं, तो उनको पता है कि रजिस्ट कैसे करना है, उनको पता है कि अडॉप्ट कैसे करना है, उनको पता है कि फाइट बैक कैसे करना है. ठीक, ये क्वालिटी है. ये क्या ना, ये इनबिल्ट होती है, और कुछ लोग लर्निंग करते हैं. तो हमको ना ये अपने एम्प्लॉय में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फियर है, जो डिस्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है, इसको ओवरकम करने के लिए आपको अपना जैसा बंदा बनाना पड़ेगा. और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी जो मेरी टीम होती है, जो मेरे जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो कुलीग होते हैं, हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूँ, मुझे दो चीजें पसंद नहीं आती है. आई एम हाईली डू नो, मुझे झूठ पसंद नहीं आता, मैं झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करता. एंड यू शुड बी ऑलवेज ट्रस्टवर्दी. लॉयल रहो कंपनी के लिए आप. ये दो काम है, तुम अगर परफेक्ट हो तो तुम कुछ भी करके आ जाओ तो मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए. आई विल फाइट फॉर यू टिल माय लास्ट ब्रेथ. दैट्स माय प्रॉमिस. उसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, और मैं अपने कमिटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में भी, इवन पर्सनल लाइफ में भी. जो एक बार बोल दिया तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर दूंगा, उससे पीछे नहीं जा सकता. करेक्ट. तो ये जो ओवरकम मैकेनिज्म है, जो स्ट्रेस का, आपको अपने अंदर ना एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, वो भरनी पड़ेगी, कि जिससे कि ये चीजें आप पे हावी ना हो. देखिए, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इमोटिवेशन, ये सब जगह रहेगा, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है. नोबडी कैन अनटच्ड, ये पार्ट ऑफ लाइफ है. कोई पर्सनल लाइफ में कोई परेशान रहता है, प्रोफेशनल लाइफ में परेशान रहता है, कॉर्पोरेट में है, सब तरह का प्रेशर है. कॉर्पोरेट का प्रेशर एक अलग होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, पॉलिटिक्स होती है, लॉबिंग होता है, ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है, ये होगी, ये उसका एसोल है, सब रहेगा. ये रहता ही है. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते.
बट आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन दिमाग में होना चाहिए कि आपको हैंडल कैसे करना है। जो अगर पर्सनली करेक्ट। आपको, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ आएगा। इवन समटाइम आई आल्सो फील बैड, कभी कभी कुछ हो जाता है, अरे राइट। यार ये दैट थिंग हैज नॉट गॉन दैट वे, दिस वाज नॉट डिसाइडेड, हाउ इट हैपेंड, ओके नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सोचता हूँ मैं, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, बट उस चीज को हावी नहीं ट्रू। होने देना है। यू शुड, आपको उस चीजों को अपने ऊपर माथे पे लोड नहीं लेना है। बुरा लगता है, एक टाइम बीइंग के लिए बुरा लगेगा, बट उसको आपको भूलना पड़ेगा, और उसको भूल करके राइट। नया शुरुआत करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। मैं भी क्या हूँ कि ऐसा नहीं कि एवरी डे इज रोज डे, ठीक है, और आपको यस। हर एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज मिलेगी, नो ऐसा नहीं है। कभी देखिए, आप जब राइट। लीडर होते हैं ना शिल्पा जी, जब आप लीडर होते हैं तो यू शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सक्सेस इज योर, ट्रू। फेलियर इज योर्स, so you ट्रू। have that guts, you have that ability to accept your failure, जो बहुत कम लोगों में वेरी होता ट्रू। है। और मैं तो बहुत साफ साफ बोलता हूँ, इवन कंपनी में साफ साफ बोलता हूँ, मैं 10 चीजें करता हूँ, चीजें सही, 5 चीजें गलत, आई डोंट केयर। बट क्या है इसमें लेसन, क्या है कि 5 चीजें जो मैंने गलती की है, अगर उससे मैं सीख गया तो दैट्स माई लर्निंग एंड दैट्स माई अर्निंग। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स वेरी वेल सेड। और दूसरा मुझे ये लगता है कि taking responsibility of your own failures or your success, taking credit for both is very very important, because a lot of times corporate में देखा गया है कि अगर अच्छा कुछ होता है तो people are always there to take credit, लेकिन अगर बुरा होता है तो responsibility लोग लेते नहीं है. So I think this is also a very important quality if someone wants to dive into the corporate industry. Okay, I think we just lost his connection. Let me invite him once again. So guys, you can just keep your questions ready in the meanwhile. Yes, Inderji. I think we just lost you because of some network issue. Yeah, I think so. Yeah. Yes, wonderful. So, yes, what you said is on point and very important. As you said, कि हावी नहीं होने देना है, and you have to be, you have to maintain the sanity and the decorum, not letting the organization hamper, at the same time not letting it hamper your mental health. दोनों चीजें बहुत ही important है. True. Fantastic. So yes, True. these were the questions from me. Now we have the floor open to take questions from the viewers. So viewers, if you want to ask anything, please यहाँ पर आप टाइप कीजिए. काफी सारे ऊपर मैसेजेस आए हैं. I cannot read all of them. तो अगर आपको कोई भी सवाल है, I can make you join our video as well. So yes, you have this opportunity to come up on the video and रूबरू होके आप बात कर सकते हैं इंदर भुवन सर से. So let's see if we have any questions coming up. Anyone who has a startup, or you are an entrepreneur, or you are getting into a corporate, you are a student who is willing to get into corporate industry, any question that you have, any doubt that you have, you can just come up and ask us. Sir is there to guide you and help you out. Anyone who would want to send a request to be on the video, you're most welcome. Yeah, so meanwhile, we get the questions, Inder Bhuvan ji. No problem. मुझे ये पूछना है कि अगर कोई है जो, let's assume people, those who have just students, those who have just finished their education, उनका graduation हो गया है, and now they want to become an intern, जिसे हम campus to corporate कहते हैं. तो उनको अगर जाना है, what are those tips that you would like to give to the students who would want to jump into the corporate industry after doing their graduation or post graduation? I think so. You're talking as a management trainee, right? MT. Yes. Yeah. Even I joined as a management trainee when I done my MBA. Wonderful. वो भी एक अच्छा टाइम होता है, and that's I can say ना. Yes. That is your first step to the corporate world, ठीक है. Yes. वहीं से आपकी नींद पड़ती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि वो जो समय होता है, जो टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगा, जो स्पेशली यंग जनरेशन को, कि आप बिल्कुल बी वोकल, ठीक है,
बी एडॉप्टिव, लर्निंग सीखिए, एंड विच आई बिलीव लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मैंने एमबीए कर लिया या मैंने ये ग्रेजुएशन कर लिया देन आई एम परफेक्ट। नो, नोबडी कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। और लर्निंग True. हमेशा होता रहेगा, आपके लाइफ के लास्ट फेज तक भी आपको सीखने को मिलेगा। और लर्निंग आप किसी से भी कर सकते हैं। ये मैंने ऐसा इसीलिए बोला कि आइडियाज कैन नॉट बी मेड ऑन द बुक्स। नो, Yes. आइडियाज कम्स फ्रॉम ट्रू एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम इनबिल्ट लाइफ जर्नी, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द एटमोस्फियर, फ्रॉम द पीपल। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि आप अपने मेड से भी आइडिया ले सकते हैं, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी आइडिया ले सकते हैं। सो आइडिया डोंट हैव Yes. बाउंड्रीज। तो ये यंग जनरेशन जो है आज के डेट में, जब हम एमबीए करके निकलते हैं तो हमको बड़ा टसन होता है, मुझे भी हुआ करता था कि दिस दैट मैं ये जानता हूँ। पीपल यूज्ड टू टेल मी व्हेन आई वाज इन एमबीए मैनेजमेंट गुरु, क्योंकि मेरा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में काफी इंटरेस्ट रहा करता था। तो एक एमबीए की Mm-hmm. बुक आती है, फ्लिप कॉटलर, आपने वो नाम सुना होगा। जिन लोगों ने एमबीए किया है Yes. इस बुक का नाम जरूर सुना होगा। ये इसको बाइबल बोलते हैं। ये ही इज कॉल्ड मार्केटिंग गुरु, Correct. फ्लिप कॉटलर। तो वो बुक Mm. मैंने रगड़ा हुआ है, ठीक है। आई यूज्ड टू कॉल Okay. आई यूज्ड टू कॉल फ्लिप कॉटलर इन माय एमबीए कॉलेज। तो ये मेरा सब पैशन होता है अपना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, मुझे अच्छा लगता है। आपको जो यंग जनरेशन, आपको जिस काम में मजा मजा आए उसी को चूज करने का। क्योंकि जब बट जब आप काम करते हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर वर्किंग यू डेवलप सम इंटरेस्ट। अब जैसे कोई बंदा Correct. है, उसको मार्केटिंग या ब्रांडिंग का बहुत एक कीड़ा है, ठीक है, बट उसके Mm. कोर्स में नहीं है, ठीक है, वो जो कोर्स में नहीं है, Mm. बट वो क्या करेगा कि उसको दबाएगा दबाएगा। माई मैसेज टू यंगस्टर्स, डोंट हाइड और डोंट सप्रेस, वी कम आउट। Mm. उसको ऊपर लेकर आओ आप, क्योंकि आप उसमें अच्छा कर सकते हो आप। क्योंकि कभी भी दबा कर चीजें में आपको सफलता नहीं मिलेगी, मजा नहीं आएगा। और मैं तो बिलीव करता हूं कि जिस काम में मजा है उसी काम को करने का। अंडर प्रेशर किया हुआ काम में True. कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी लगे, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंस है, अकाउंटिंग का पार्ट है जो आपको बहुत स्ट्रांग है, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, गो फॉर दैट। डोंट बाउंड योरसेल्फ इन द बाउंड्री। तो आपको वोकल होना पड़ेगा Yes. और सोचना पड़ेगा किस काम में आपको मजा आता है। और दूसरा, जब जब यंगस्टर जाते हैं किसी कैंपस में, जब कंपनी में सिलेक्ट होते हैं, उनका इंडक्शन होता है, इंडक्शन पीरियड होता है, 3 मंथ्स का होता है, 4 मंथ्स का होता है। तो उस इंडक्शन पीरियड को ना, जनरली जो कॉर्पोरेट टर्म में एक शब्द बोलते हैं, उसको बोलते हैं हनीमून पीरियड। ठीक है, Yeah, exactly. I've heard of it. Yes. ओके। So that period is honeymoon period, means nobody is going to tell you anything, okay? You can Yeah. enjoy during that period. But what ना I सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो. so what I will try to tell my people, means youngsters, use that period in improving yourself, upgrading yourself. Yes, Mm. it's your honeymoon period, Yes. nobody is denying, enjoy, मस्ती करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। take all things as a casual basis, no problem, but at same time उस पीरियड में ना अपने आप को तुम एडॉप्टिव बनाओ और गो गेटर Mm. बनाओ और सबसे सीखो। क्यों, क्या है ना कि कभी क्या होता है कि जब हम एमबीए करके आते हैं ना, तो हमारे पास एक टसन, एक यू आ जाता है। अरे वी आर, सम टाइम क्या Right. होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपसे एजेड पीपल हैं, बट दे इन हायरार्की, Mm. इन प्रोफाइल, दे आर बिलो देन यू। तो उस समय क्या आता है, यार Right. हाउ दैट गाय इज बिलो देन मी, इट्स अ मेंटालिटी। तो इसको हटाना पड़ेगा, आपको एक फ्रेंडशिप का Mm. एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा जो मेरा पर्सनल है कि हम भारतीय संस्कृति से आते हैं, भारतीय कल्चर से आते हैं, और हमारे कल्चर में एक चीज हमेशा सिखाया गया है, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनका सम्मान हमेशा करना है। एंड यू शुड ऑलवेज हैव Correct. रिस्पेक्ट फॉर दैट स्पिरिट, इवन दो दैट गाय डजंट फॉल्स अंडर योर कैटेगरी, मींस उसकी प्रोफाइल आपसे नीचे है, बट यू शुड गिव रिस्पेक्ट। ये मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा। True. ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने सीखा है, देखा हूँ लोगों को करते हुए, काफी बोलता भी हूँ मैं, उनसे भी सीखो आप। इवन तो आप उसके बॉस होंगे, by hierarchy you may be your boss, but you should also try to adopt something from
that guy, from that personality. तो ये मेरे तरफ से है, टिप्स है, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो जीवन में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा क्या इसका आपको फायदा मिलता है, मैं बताता हूँ आपको शिल्पा जी। एक होता है बाय फोर्स चेयर, आप बॉस है बाय फोर्स, ये चेयर पे बैठ गए आप, बट वो चेयर आपको बैठने देगा या नहीं देगा वो उसका कॉल है। और जो वेरी ट्रू और जो टीम है, जो टीम आपके अंदर काम करती है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक ट्रू लीडर का काम है, और लीडरशिप यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप सबको साथ लेके चल पड़े, देन इट्स एसेंस ऑफ लीडरशिप। तब आपको जीवन में कोई पीछे नहीं आपको दिखने मिलेगा। आपकी एक्सेप्टेंस सब जगह पे है, हर एक लेवल पे है, एंट्री लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, टॉप लेवल पे है। क्योंकि मैंने भी जीवन में बहुत सारे लेवल देखे हैं। जब गोदरेज से मैंने कैंपस किया तो मैं एमटी ज्वाइन किया, उसके पहले पुणे में काम किया, एज एरिया सेल्स ऑफिसर काम किया। सिर्फ लोग बाइक से बैठ के पीछे पीछे जाता था डिस्ट्रीब्यूटर के पास घूमने के लिए, वो सुट्टा मारना जो भी है। और अच्छा आपको करना पड़ेगा, तो आज क्या है ना, it's a phase of life, it's a process of life, and I think you should do it. you should do it, it's a process of life, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्या है ना, उसमें एक चीज जो मैंने नहीं छोड़ा कि मैंने हर एक लेवल का ना रिस्पेक्ट दिया है। और आज ये लेवल बहुत जरूरी है। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे हर एक लेवल का पेन पता है, then you will take a right call। और आप उसके जिसको बोलते हैं ना एम्पैथी, you can see somebody in your shoes और other shoes, ये तभी आता है कि जब आप हर एक लेवल को क्रॉस करते हैं। और ऐसे लोगों को जल्दी कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वो हर एक स्टेप बाय स्टेप पहुंचा है वहां पर। तो उसका हर एक लेवल का एक्सपीरियंस है जो उसको इतना मजबूत बनाता है। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन है यंग जनरेशन के लिए। आपसे मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि इसको एंजॉय करें, इसको सीखें, इसको अडॉप्ट करें और सबको साथ लेके चलें, और लर्निंग छोड़ना नहीं। तब आपको लाइफ में कभी पीछे में मुड़ के नहीं देखेंगे आप। करेक्ट। आई थिंक लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम लोग मेरा बच्चा है, माय सन इज 7.5 years नाउ, तो उससे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। द थिंग इज कि क्या आपके अंदर वो जज्बा है सीखने का? आर यू अ गुड ऑब्जर्वर? आर यू अ गुड लिसनर? डू यू हैव दैट ह्यूमिलिटी टू ऑब्जर्व? अगर आपने ये सोच लिया मुझे सब आता है, आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ योर सक्सेस जर्नी। हाँ, तो you have to be very open-minded, keep your eyes open, ears open, and keep absorbing the good things. जो अच्छी चीजें नहीं है, keep filtering them. I think learning curve is never going to end. It has to be there. It's a, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वैसे learning is something that is there in our life, and we should do it that way. आपकी मुझे एक बात बहुत पसंद आई, और मुझे ऐसा लगता है कि even any profession या फिर even personal life, kindness, humility, empathy, ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो शायद आप सीख नहीं सकते हैं। दीज आर समथिंग विच आर इनहेरेंट, लेकिन लोगों को देख के आप जरूर सीख सकते हैं। बट देन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ये सिर्फ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल तक ही नहीं, ये अक्रॉस द वर्ल्ड उसकी वजह से जो प्रेम की भावना है, जो एम्पैथी है, काइंडनेस है, दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली यू। जैसे कि एक बंदे से अगर हम लोग ने शुरू किया, इफ एवरीबडी स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग दिस, can we imagine such a beautiful world we can make? True, 100%. If we can just give a little empathy, दो प्यार के शब्द किसी से बात कर लिए, if you just even smile at someone, it makes someone's day, you know. So I think this is something which goes for anyone and everyone, across the ages, across the professions, across from wherever you come from. This is something which everyone must practice. Must practice, true. I'm a strong believer of this. नहीं, बिल्कुल सही, Amazing. बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काइंडनेस बहुत जरूरी है। काइंडनेस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ये पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, और आपके बिहेवियर में होना चाहिए, आपके लर्निंग में होना चाहिए, आपके काम के तरीके में होना चाहिए। क्योंकि आपको ये जो ये चेन है, जो जुड़ता है इकोसिस्टम, इसी से जुड़ा होता है। अगर आपने इसको अच्छे से मैनेज कर लिया ना, तो यू आर गेम चेंजर। और बिल्कुल, और स्माइल लाना दूसरों के फेस में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और बहुत ही सिंपल सी चीज है किसी को स्माइल करवाना। इट डजंट इन्वॉल्व एनी रॉकेट साइंस। तो आई थिंक इफ यू ऑल कैन डू दैट विल बी अमेजिंग। लुक एट यू। ओके, सो वी हैव ग्रेट कमेंट्स कमिंग इन।
Do we have any questions, guys? If you have any questions, I can let you join the video chat. तो मैं चाहूंगी कि अगर आप आना चाहते हैं वीडियो पर, you just have to send a request, video request भेजिए, and I will invite you here. Anyone who would like to join us and have a small chat. So by the time we have some questions coming up, I'm really inquisitive to know, जैसे कि आपने इंडिया में भी काम किया है, and now you're working in Tanzania for more than 11 years. तो यहाँ का ecosystem, when it comes to the corporate culture, when it comes to the functioning of the entire institution, entire organization, how different is it from, I mean, what is the difference between India and Tanzania? देखिए, कॉर्पोरेट तो कॉर्पोरेट होता है, ठीक है। That's an amazing line. I like it. नहीं, सबका एक बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक कभी भी डिफर नहीं होता है। बेसिक फंडामेंटल जो होता है ना, वो हमेशा सेम रहेगा, whether it's Tanzania, whether it's Nigeria, whether it's Kenya, Ghana, India, whatever, whether it's UK, London, whatever। क्या डिफर करता है? डिफर करता है जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं। पीपल मेक ए कंपनी, राइट। कंपनी डोंट मेक ए पीपल। एब्सोल्युटली। और ये इंसान को हमेशा समझना चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने लोगों से जानी जाती है, जो उसमें काम करते हैं। अगर आज मैं अब सिंपली अपनी बात करता हूँ, अगर मैं किसी भी क्लाइंट से मिलता हूँ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता हूँ, दे नो इंदिरा, एंड इंदिरा रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी परसेप्शन, अगर मेरी इमेज अच्छी है, अगर मैंने उनको कन्विंस कर पाया, इट मीन्स क्रेडिट गोज टू ऑर्गेनाइजेशन, ही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट आई फील कि डिफरेंस बेसिक क्लियर है दोनों का, एक ही सेम रहेगा कॉर्पोरेट का। वर्किंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। व्हेन इन टर्म्स टू इंडियन मार्केट, एक अलग मार्केट होता है थोड़ा, विच आई कैन स्मेल कि मैं अब तो मुझे इंडिया से 11-12 साल हो गए जो मैं टच में नहीं हूँ, बट मैं आपको, बट इंडिया चेंज नहीं हुआ होगा इतना, जो आई कैन प्रिज्यूम कि लोग वैसे ही हैं। इंडिया में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी क्या उसको बोलेंगे आप, पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा लेवल पे है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट क्लिक्स होते हैं, ग्लिचेस होते हैं, वो थोड़ा सा लेवल, थोड़ा इंटेंसिटी अप होता है थोड़ा, ठीक है। एज डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ओपननेस ज्यादा है, ठीक है। उसका कारण क्या है? 2 कारण उसके। इंडिया इज ए हाईली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो और यहाँ अफ्रीका क्या है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो आपको सुनने वाले लोग बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्लेन पोलराइज्ड जो मैंने कंसेप्ट दिया था आपको, यहाँ पे फोकस ज्यादा है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही कॉमन डिफरेंस। और अदरवाइज कॉर्पोरेट सब जगह सेम होते हैं। राइट। कल्चर है, हाँ। कल्चर कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर जाता है। कभी क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूएसपी होता है, एक उसका काम का तरीका होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय उसका एसेट है, करेक्ट। किसी एब्सोल्युटली। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समटाइम एम्प्लॉय बिकम ए लायबिलिटी, ठीक है। ये भी होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी सोचते हैं। तो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा जो है ना, मेरा एक मैसेज है ऑर्गेनाइजेशंस को भी, कि व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल कॉर्पोरेट्स, प्लीज ट्रीट योर एम्प्लॉय एज एन एसेट, लाइक ए फैमिली। अगर आप उसको एज ए फैमिली ट्रीट करोगे ना, वो बंदा जान लगा देगा बॉस, वो बंदा आपके लिए जान लगा देगा। एंड फॉर मी एवरीथिंग इज नॉट मॉनिटरी। आप एम्प्लॉय को सिर्फ मॉनिटरी पैकेज से खुश नहीं रह सकते ना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है मेंटल सेटिस्फेक्शन और मेंटल रिलीफ। अगर बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड है, अगर खुश है, तो वो बंदा अपना 100% देगा।
ऐसा नहीं कि आपने उसको करेक्ट, पैकेज अच्छा दे दिया, बोनस दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, मर्सिडीज कार दे दिया, बंगला दे दिया। इससे ये या इट कैन बी वन थिंग टू मोटिवेट एम्प्लॉय, इट कैन बी वन पार्ट, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट वन, बट एवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेंटल सेटिस्फेक्शन। वो बंदा अगर अपने काम करने से एब्सोल्युटली, सेटिस्फाइड है, अंदर से खुश है ना, देन यू आर द रॉक स्टार, मीन्स यू आर इन द वेरी राइट ट्रू, डायरेक्शन। तो ये मुझे लगता है कि दोनों लेवल पर, चाहे इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो, एब्सोल्युटली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अप टू मार्क रखना चाहिए, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल थिंग्स, नॉट ओनली दी पैकेज एंड रेमुनरेशन और पर्क्स, उसको आप मेंटली भी उसको खुश रखें आप। और उसको अगर ये बिल्कुल, उसको अगर ये फीलिंग आ जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए खड़ा है मेरे मुसीबत में ना, तो मतलब कि वो कुछ भी करेगा बंदा वो आपके लिए। और देन यू आर द रियल एम्प्लॉयर, देन यू आर द रियल कंपनी। yes, अगर मेरी अपनी बात करता हूँ मैं, जो मैं देखता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मेरी कंपनी में जो मेरे अंदर आती है, उसका एट्रिशन रेट 0 है। ओह, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ना, मुझे छोड़ते नहीं हो। क्या बात है, नहीं, ये मेरा तरीका है शिल्पा जी, ये मेरा तरीका है। आई बिलीव माई टीम इज माई फैमिली, और मेरे लिए यस, ऑल पीपल्स आर इक्वल इन माई आईज, और मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, मैं सबके लिए खड़ा हूँ। करेक्ट, जहां पर कोई लगता है आई कि थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने कहा कि एम्प्लॉयर का काम सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स देना नहीं है, बट ट्रीटिंग द एंटायर स्टाफ एज अ फैमिली. Also, I feel the onus is on the employees as well to make sure that कि आप आपके employer को, आप आपके co-workers को भी उसी तरीके से, उसी empathy, kindness और respect के साथ treat करें. जी Because any relationship, I feel, Indra Bhuvan ji, is give and take. गिव It एंड टेक, has to ट्रू be from ट्रू both the ट्रू ट्रू sides. ट्रू ट्रू Yes. ट्रू। तो आज अगर हमारे viewers में जो employers हैं, so उनके लिए ये एक बहुत ही vital message है that you have to treat your employees as an asset and not a liability. ट्रू। और हमारे यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स अगर एम्प्लॉयज हैं वर्किंग फॉर समवन, प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल्सो पुट इन सम एफर्ट्स. आप भी उसमें आपके एफर्ट्स डाल रहे हैं टू मेक श्योर कि आपकी उनके साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज विदाउट एनी फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आएगा, बट देन हाउ टू ओवरकम विद ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस. अगेन, द एंटायर थिंग रूट्स टू दैट empathy, kindness, being polite, be a problem solver and not a problem creator. So I think, yeah, that's very, very necessary. One more thing I want to add here, Perfect. Shilpa ji. One more thing I want to add here. Yes. Is this is for employee. You should always try to be a problem solver. Always try to give solution. Problem part of life है. You cannot escape. प्रॉब्लम रहेगा तभी आना Yes. है। और इंडस्ट्री में कैसे लोग नाम कमाते हैं, अगर कोई भी आपके बॉस हो या मेरे बॉस हो, कोई भी हो कंपनी में, हाउ हाउ एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज यू, दे रिकॉग्नाइज यू बाय योर वे ऑफ वर्किंग। देखिए, सक्सेस Yes. विच आई फील, सक्सेस का कोई मंत्रा नहीं होता है शिल्पा जी। सक्सेस कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कि इसके बिल्कुल. पांच फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला अपना लो तुम सक्सेस, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसको जीवन में अपनाना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल थिंग है। Hmm. अगर आपके पास ये स्किल है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं, उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, देन यू आर ए रियल मास्टर। प्रॉब्लम रहेंगे, आपके पास Yes. सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी। अगर जैसे मैं भी हूँ, तो मैं सेम चीज अपने अपने एम्प्लॉय से भी चाहता हूँ कि प्रॉब्लम रहेगा Hmm. तो मुझे सॉल्यूशन बता दो, सर इसका इसका ए ये है, बी है, सी है, डी है, आपको जो चार में अच्छा लगता है वो कर लो आप। अगर ये Correct. क्वालिटी आपने ला दिया और रेप्लिकेट कर दिया अपनी टीम में ना, तो मतलब कि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज है। और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ओनर्स, दे लाइक दिस क्वालिटी, आपको इसी का पैसा मिलता है। Yes. एक चीज और है इसमें, Absolutely. एक चीज और है, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ कभी कभी इंडियन मार्केट के हिसाब से, कि समटाइम विच आई कैन स्मेल, देयर इज ए सेंस ऑफ नेगेटिविटी इन एम्प्लॉय। यार Hmm. ये तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। समटाइम पीपल्स आर बाउंड टू टाइम टेबल, 8:30 to 5:30 गेम इज ओवर, अरे पैकअप। नहीं नहीं, ऐसा है शिल्पा जी, ऐसा है। कुछ लोग बड़े टाइम बाउंड काम करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं हाँ. करता कि वो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, बट यू शुड Right. टेक हेयर, यू शुड टेक ऑनरशिप।
आज सबसे बड़ी जो कमी है, आज जो सबसे बड़ी कमी है ना, इसी कमी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको ना एम्प्लॉय तो मिल जाएगा, बट एम्प्लॉय विद ऑनरशिप क्वालिटी बहुत रेयर हो गया है। और जो एम्प्लॉय इस क्वालिटी से लेकर ऊपर आएगा ना, वो हमेशा ऊपर जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई भी कंपनी होता है ना, वो कभी ब्लाइंड नहीं हो सकता, वो देखता है। और आपको लोग ऑब्जर्व करते हैं, कभी हमको ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, साला कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई देखता ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखने वाला देख रहा है, and when time will come, it will be rewarding. Absolutely. लोग ऐसा नहीं समझते। मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन इंडिया में भी हैं यार, क्या होता है, एज ए दे आर वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टाइम टेबल हो गया, क्लास चलते हैं, फैमिली लाइफ है। आपको ना एक पागलपन है, आपको बता रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटी है ना, एक नशा है। एक आपको जीना पड़ता है, जुनून है, जुनून। ठीक है, अगर आपने कोई चैलेंज लिया है ना, तो उसको आप जीना सीखें। आप में आपके अंदर पागलपन दिखना चाहिए। मैं बोलता हूँ, अपनी टीम में ही बोलता हूँ, जो कोई भी क्वालिटी, सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, न्यू डेवलपमेंट है, न्यू एवेन्यू, जो आपको एक पागलपन दिखाना पड़ेगा। जब तक आप अपने सपने के लिए पागल नहीं होंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। और सफलता ऐसे नहीं, ये सच्चाई है शिल्पा जी, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। आपको बहुत बहुत रगड़ना पड़ता है अपने आप को। आपको अपना दिमाग, माइंड, ब्रेन सब देना पड़ता है, तब जाके कहीं पे आपको एक आशा की किरण दिखती है। तो मेरा यही है कि आप लोग जो भी हैं, जो दोनों मार्केट में, जो अफ्रीका है या इंडिया है, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को अपने लेवल पे ना बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एंड यू शुड हैव बाइंडिंग फॉर ईच अदर। और ये गिव एंड टेक है, बिल्कुल सही बोला आपने, गिव एंड टेक है। और एम्प्लॉय को भी बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर को भी उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और एक एज ए टीम लेके चलना पड़ेगा। एज ए टीम भी है। आपने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट, हाँ सॉरी बोलिए। हाँ, एज ए टीम की जो डेफिनेशन होती है, जो हम टीम बोलते हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर मोर लेना है तो टीम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू बी टुगेदर। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला कि लोगों को ऐसा होता है, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगों को चाहिए होता है, आई थिंक उसके पीछे ना भागते हुए अगर आप शिद्दत से अपना काम करें, ईमानदारी से अपना काम करें, तो आपको मेनी फोल्ड्स रिकॉग्निशन मिलेगा, शायद जो आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। एंड दिस हैज हैपेंड विद मी आल्सो। एंड पीपल, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वर्क फॉर मनी, जो मेरे ख्याल से उसको कॉनोटेशन वैसा देना ही नहीं चाहिए। If you just do your work, money is just a byproduct. Money is going to come to you. Fantastic. सिर्फ आप मेहनत से आपका जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे निभाइए, एंड द यूनिवर्स विल गिव यू मेनी फोल्ड्स, इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। एक कहावत है, वंडरफुल, काम के पीछे नहीं भागना, परफेक्शन के पीछे भागो। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे ना, तो सफलता पीछे पीछे आएगी आपकी। नाम, शोहरत, पैसा सब आपको फॉलो करेगा। बट आपको बहुत ही कमिटेड और डिटरमिन्ड होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आई थिंक डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड परसिवियरेंस के सिवाय आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सक्सीड। यस, वंडरफुल। सो आई थिंक एवरीबडी हैज, इस यहाँ पर किसी के सवाल नहीं दिख रहे हैं मुझे। वी आर क्लोज टू क्लोजिंग द सेशन। सो एनीवन, लास्ट कॉल इन केस इफ यू वांट टू कम अप। आप अगर वीडियो पर आकर हमसे बात करना चाहते हैं, इंद्रभुवन जी से सवाल पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे के टैब पे आपको दिखाई देगा, वहां पे एक वीडियो का साइन है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, और मुझे यहाँ पर इनविटेशन रिक्वेस्ट आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर इनवाइट कर पाऊंगी, और हम रूबरू होके बात कर पाएंगे। सो एनीवन who would want to come up and talk or ask a question, we have last 5 minutes to go. You can definitely come up and talk to us face to face, virtually face to face. Fantastic. So this was a great session. I think आपने जो बातें कही हैं, beyond what we, beyond the degrees that we hold, beyond getting accredited, beyond the credits of the education, I think ये सारी चीजें हैं, ये सारी जो qualities हैं, वो होना बहुत ही जरूरी है। Only then you can make justice to your degrees. नहीं तो सिर्फ डिग्रीज लेके मेरे ख्याल से it doesn't make sense. इसलिए आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग डिग्रीज लेके बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो ड्राइव नहीं है।
दे आर ओनली व्यूइंग मनी, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, इसीलिए शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। एक सो ऑल दीज इसमें एट्रीब्यूट्स। एक चीज और है शिल्पा जी, जहाँ ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है जीवन में कि आपको अकेले भी चलना पड़े, बिल्कुल। आप अकेले भी रहेंगे। क्या होता है, मैं क्या हमेशा बोलता हूँ, यू शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सत्यमेव जयते, ये सिर्फ कहावत या सिर्फ बुकों में नहीं है, ये जीवन का पार्ट है। राइट। और मैंने जिया है, और मैं बिल्कुल। जीता हूँ उसको, मैं जीता हूँ उसको, और ऑब्जर्व भी किया है, और होते देखा भी है। सत्य को कोई नहीं झुका सकता, सत्य को करेक्ट। परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। और हमेशा अब होता है, सत्य के साथ जब खड़े रहेंगे ना तो आप अकेले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। बट मैं बड़ा डेयरिंग बंदा हूँ, डरता मैंने किसी से नहीं मैं, ठीक है। और जब कोई कॉल लेता हूँ तो ले लेता हूँ, आगे जो होगा देख लेंगे। आई डोंट केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। और जो मेरे दिल को पसंद आता है, जो लग गया है दिमाग में, वही करता हूँ मैं। और कभी कभी होता है कि मुझे भी लगता है यार कोई साथ नहीं है, कोई, पर कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर। टाइम, व्हेन टाइम passes away and people realizing, अरे बाबा, that guy was right, लोग आएंगे आपके पास, राइट। लोग चलता रहेगा। यस। give some time to those people। और ऐसा यस, बिल्कुल मत एब्सोल्युटली। सोचिएगा कि क्या है ना, कि दुनिया बड़ी, उनका काम ही यही, आपको लेग पुलिंग होगा, कॉर्पोरेट है, पॉलिटिक्स है, तो इससे इससे हमको डेविएट नहीं होना है, इससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो आपका एजेंडा है काम का, जो आपका स्टाइल है, उसको चेंज नहीं करना है कभी। अगर आप उसके लिए राइट। जान, अब जो सिंपल सी बात है, जैसे अब सचिन तेंदुलकर हैं जो बैट्समैन थे, हुआ करते थे, तो वो हमें हमेशा ओपनिंग शॉट में आते थे। हम उनको मिडिल ऑर्डर में हम्म। नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी वो नहीं है। अब बिल्कुल। सलमान खान को कोई बोले कि लवर बॉय बन जाओ, तो वो फर्जी लगेगा, क्योंकि वो उसका क्योंकि वो उसको हम उसके लिए एडेप्टेड नहीं है। हम उसको मार धाड़ करके, राइट। एक्शन, गैंगस्टर, समथिंग लाइक दैट। राइट। अब आप ऐसा बोल दो, शाहरुख जी को बोल दो कि एक्शन मैन बन जाए, तो वो भी ऑड लगेगा। तो जो बिल्कुल। आपकी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना। ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी मेंटेन, मेंटेन करना और बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, डोंट ट्राई टू कॉपी डोंट एनीवन। ट्राई टू कॉपी दैट्स एनीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी या। है। आप कॉपी कट ना करें, यस। कट कॉपी पेस्ट जो होता है, इससे दूर रहें। राइट। आप बिल्कुल नेचुरल रहें, जो आपके अंदर जो क्वालिटी भगवान ने दी है, उस पर फोकस करें, उसको यस। पकड़ के रखें, तो सफलता अपने आप मिलेगी। वंडरफुल। ये एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ इंद्र भुवन जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि यूनिक की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप बता पाएंगे? व्हाट इज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ यूनिक? जैसे यूनिक कि हम लोग बोलते हैं कि गुड, गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसे यूनिक के लिए कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि वो शब्द यूनिक है। इसलिए यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान यूनिक है। ट्रू और आपकी वो जो यूनिकनेस है, ऑथेंटिसिटी है, अगर आप वो मेंटेन करेंगे तो इट विल टेक यू टू प्लेसेस। आप ट्रू कॉपी शायद कुछ दिन कर पाएंगे, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ट्रू ट्रू सो बी यू, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, डोंट ट्राई टू बी समवन नो, एल्स, क्योंकि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे उसमें। अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं, यूनिक, आपने आपने बिल्कुल सही बोला कि यूनिक का कोई कंपैरिजन नहीं है, शिल्पा जी। यूनिक यस। अपने आप में यूनिक है, एंड यस। इट्स बियॉन्ड वेरी कंपैरिजन। और जो मुझे फील ट्रू। होता है, मैं सही बता रहा हूँ, कि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान में कुछ बिल्कुल। यूनिक क्वालिटी है। जरूरत क्या है, उसको तराशने की, उसको आइडेंटिफाई करने की, हाँ। और उसको रिकॉग्नाइज करने की। राइट। लोग यहाँ थोड़ा सा करेक्ट। डिफेट कर जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सबके अंदर यूनिकनेस हम्म। है, सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ अलग दिया है। अगर आप उसको पकड़ लें, बिल्कुल। उसको पहचान सकें, और उस पर एडप्ट करें उसको, तो आप जीवन में सबसे ज्यादा सुखी यस। इंसान रहेंगे। और एक चीज और है यहाँ पर, एब्सोल्युटली। कि स्टॉप कंपेरिजन, स्टॉप कंपेयरिंग। ये मेंटालिटी बहुत निगेटिव है, स्पेशली राइट। स्पेशली हमारे इंडियन माइंडसेट में ज्यादा होता है ये। अगर आप देखेंगे हमारे हम्म। कल्चर में, इंडियन माइंड से बहुत ज्यादा, यूरोपियन जो जो फॉरेनर्स लोग हैं, वो ज्यादा खुश क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हम्म। क्या है, कि उनकी अपनी दुनिया है, उनका हाँ। उनका अपना स्टाइल है काम का, अपना टाइम पास का अपना स्टाइल है, अपने मस्त रहते हैं वो। शर्मा जी क्या कर रहे हैं, वर्मा जी क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, डोंट कोई केयर। लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं इनका, कोई लेना देना नहीं इनको, तो दे आर हैप्पी पर्सन। बट हमारे यहाँ क्या है, यार कल उन्होंने मर्सिडीज लाया यार, ओहो,
वीडियो गेम का नया वाला पोर्ट लिया है क्या उन्होंने? अरे, और मुझको कुछ अब BMW 2 लेना, सीरीज लेना पड़ेगा। अरे व्हाट यार, अपना जियो ना आप। नहीं नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं बिल्कुल शिल्पा जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई है। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है ये, जो यू कैन से डिस्कॉर्ड ऑफ एप्पल, बिल्कुल ये कला का जड़ है। अगर इंसान अपनी मेंटालिटी को, अपनी थॉट को बिल्कुल साफ कर देना, तो सबसे खुशी इंसान है। और मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं कि बिल्कुल। इवन मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम पे भी बोलता हूँ, पुलिस को बोलता हूँ कि स्टॉप कंपैरिजन। कंपैरिजन करना बंद कर दो, तुम यस सबसे सुखी इंसान रहोगे। किसको क्या पैकेज मिलता है, किसका क्या फैसिलिटीज है, इसको ये मिलता है, उसको सर इसका इफेक्ट। मुझे आप बिलीव नहीं करोगे ना कि मेरे इवन इवन इन माय सर्किल आल्सो, फ्रेंड सर्किल, कि मुझे पैकेज डिस्कशन करना सबसे वर्स्ट लगता है। सबसे वर्स्ट, मैं जवाब नहीं देता कभी। ये मैं हमेशा कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं, कभी कुछ बोले, भगवान की कृपा है, काम चल रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ठीक है। एंड आई फील अनकंफर्टेबल, नथिंग केयर है, क्या करना। हाँ, बिल्कुल। लोगों को बहुत ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट होता है। दो तीन सवाल ऐसे हैं कि शादी कब कर रहे हो, बच्चा कब हो रहा है, और आपका पैकेज क्या है। आई थिंक ये जो तीन सवाल है, ये हर कोई हर एक से पूछना चाहता है। Yes. So my dear friend Poonam is here. Yes, Poonam, lots of competition also with comparison. Very true. I think healthy competition is always welcome. ट्रू। लेकिन अगर हम उसमें पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं या किसी लेग पुलिंग करने में लग जाते हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। I, वेरी ट्रू। I would like to give one example on this line. Lots of हाँ, competition with comparison. यस प्लीज। Healthy competition should always be required. Healthy competition होना बहुत जरूरी है मार्केट यस में। उसका क्यों जरूरी है? अगर वो नहीं होगा ना, तो मार्केट मोनोपोलिस्टिक हो जाएगी। मोनोपोली नॉट यस। रिक्वायर्ड, मार्केट हम ग्रो भी नहीं मोनोपोलिस्टिक। कर पाएंगे ना, अगर कंपटीशन ही नहीं होगी तो हम अपग्रेड नहीं करेंगे, अपग्रेड नया कुछ सीखेंगे नहीं, और ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। द ग्रोइंग कर्व विल स्टॉप। स्टॉप। जी 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 जी, या तो ये बहुत जरूरी है हेल्दी कंपटीशन भी। यस यस बिल्कुल। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन, और बहुत मजा आया यहाँ पर गप्पे मारने में। सो आई थिंक द की टेक अवेज, जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताना चाहूंगी, द की टेक अवेज, द की पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे। सबसे पहले तो कीप लर्निंग, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। बिल्कुल दूसरा, मेक श्योर आपका जो सर्कल है वो सर्कल इन्फ्लुएंशियल हो, आपका सर्कल आपको ग्रो करने में हेल्प करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर थ्री, सिर्फ डिग्रीज के पीछे नहीं, तो फिर जो हमारी ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जैसे कि काइंडनेस, एम्पथी, लव, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करें। बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे तो ही आप आपके काम और बाकी लोगों के साथ ऑनेस्ट रह सकते हैं। बिल्कुल एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप जैसे हैं, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप जैसे वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, जैसे हम कहते हैं। बिल्कुल तो सही। आप अगर अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, प्रेशर, पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेट्स, लेकिन आपको अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स छोड़ने नहीं है। मेक श्योर यू आर ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल, यू आर नॉट कॉपिंग एनीवन, एंड डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। You are unique and you are wonderful as you are. So keep honing your skills. Keep getting a better version of yourself, not someone else's. तो ये आपके ethics and principles आपके place में होना बहुत ही जरूरी है। And these are the qualities which will take you to places. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शायद उनकी डिग्री इतनी नहीं होती है, but they are now big names like be it Albert Einstein or all these names हमने जो देखे हैं, they were school dropouts. Come on. So यस यस। practical knowledge बहुत जरूरी है बॉस। Don't just get into, don't be a bookworm. Practical knowledge आप gain करो। And I think then this campus to corporate वाला students के लिए जो pathway है वो बहुत easy हो जाएगा। बिल्कुल That बिल्कुल। is something that Indra Bhuvan ji also spoke about today. So yes, that was an amazing session, guys. Thank you so much. We have been joined by more than 400 people today. Indra Bhuvan ji, thank you so much थैंक for यू सो मच। sparing time for me. सेम और हियर। इसी तरीके से आप आपके यस आपका नॉलेज सब तक पहुंचाते रही है। So once again, people, those who have just joined, today we were joined by Mr. Indrabhuvan Kumar Singh, who is the CEO of Maisha Tanzania, an international coach, mentor, entrepreneur, and an author as well.
So he has his book that has come up on Amazon. So do check out. Sir, एक बार नाम बता दीजिए आपके book का. The New Age of Self Transformation. Yes. So ये book है available on Amazon Kindle. So this particular video will be there on my and Indra Bhuvanji's IGTV. If you want any references, if you want to share it with people, do share. And thank you so much for being here, everybody. Saturday है, weekend है, तो weekend में मजा कीजिए, अपने family के साथ enjoy कीजिए, friends के साथ enjoy कीजिए, get refreshed, so that Monday को Monday blues ना हो, and you start your Monday with full swing. So thank you so much, Indra. Thank you so much. Take your leave and okay, thank you so much. Have a wonderful time, people. Keep loving yourself. Keep loving everybody. Be kind. Be humble. That is all the world needs today. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye.